کیا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد عالمی رہنماؤں کو بلیک میل کرتی ہے؟ کیا صہیونی ایجنٹس طاقتور ممالک کے سربراہان اور طبقہ امراء کے افراد کو ان کی جنسی ہوس بجھانے کے لیے کم سن لڑکیاں اور لڑکے فراہم کرنے میں ملوث ہیں؟ بدنام زمانہ امریکی دلال جیفری ایپسٹین کو جیل کے اندر انتہائی پراسرار حالات میں کس نے مارا؟ ٹرمپ ایپسٹین کے بارے میں بات کرنے سے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیز ہمیشہ سے ایسے منفی ہتھ کنڈے استعمال کرتی آئی ہیں جن کے ذریعے طاقتور ترین افراد کے بارے میں ایسے راز حاصل کیے جا سکیں جن سے انہیں بلیک میل کیا جائے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہیں کبھی بھی کہیں بھی اور کسی بھی طرح سے استعمال کیا جا سکے۔ اسرائیلی ایجنسی موساد اس کام میں ہمیشہ سے پیش رہی ہے اور جیفری ایپسٹین کیس اس امر کی بہترین مثال ہے۔ یہ سن 2019 جولائی کا ہی مہینہ تھا جب ایک ہائی سیکیورٹی امریکن جیل میں ایک سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین انتہائی پراسرار حالات میں مرا ہوا پایا گیا۔ جیفری ایپسٹین کی اچانک موت کی خبر سے دنیا بھر میں شدید ہلچل مچ گئی۔ دراصل جیفری ایپسٹین دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین افراد کا دوست تھا اور اس پر عائد الزامات یہ تھے کہ وہ اپنے دوستوں کو ان کی جنسی ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے کم عمر لڑکیاں اور لڑکے فراہم کرتا تھا۔ ایپسٹین کو اس سے پہلے بھی سن 2008 میں فلوریڈا کی ایک ریاستی عدالت نے ایک نابالغ بچی سے جسم فروشی کا مطالبہ کرنے کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی تھی، لیکن سزا صرف 13 ماہ کی جیل تھی، جو جرم کی نوعیت کے اعتبار سے نہایت کم تھی اور اس کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ دراصل جیفری ایپسٹین ایک انتہائی معمولی آدمی تھا جو بہت ہی تیزی کے ساتھ ارب پتی بن گیا۔ ایک دور تھا جب جیفری ایپسٹین عالمی اشرافیہ میں انتہائی با اثر مانا جاتا تھا، اور وہ بھی ان پارٹیز کی بدولت جس کی میزبانی وہ اپنی گرل فرینڈ گیسلین میکس ویل کے ہمراہ کیا کرتا تھا۔ گیسلین میکس ویل بچوں کی جنسی اسمگلنگ کے جرم میں اس وقت 20 سال کی سزا کاٹ رہی ہے۔ یہ پارٹیز جیفری کی 6 مختلف لگژری پراپرٹیز میں منعقد کی جاتی، جن میں جیفری ایپسٹین کا گھر جو کہ نیو یارک کا سب سے بڑا گھر ہے اور مشہور زمانہ ایپسٹین آئی لینڈ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جیفری کے پاس 4 پرائیویٹ جیٹس تھے جو اس کے ہائی پروفائل مہمانوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان جہازوں میں ایک بوئنگ 727 بھی شامل تھا جسے لولیتا ایکسپریس کا نام دیا گیا تھا۔ اور ناظرین، لولیتا ایکسپریس اس کو کیوں نام دیا گیا تھا؟ لولیتا ایک بہت مشہور ناول ہے، بہت متنازع ناول ہے جو کہ رشین لٹریچر کی ایک اعلیٰ ترین مثال بتائی جاتی ہے۔ لولیتا کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ انسیسٹ ہے۔ انسیسٹ کا مطلب ہے کہ بین المحرمات جنسی تلذذ کا حصول، یعنی ایک ایسی غلاظت جو کہ رشین معاشرے کے اندر اپنا نفوذ کر چکی تھی، اس کے اوپر مصنف نے یہ ناول لکھا۔ اور اس کا عنوان رکھنے سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ پارٹیاں کس درجے کی عیاش لوگوں کے لیے منعقد کی جاتی تھی۔ سن 2019 میں امریکن پریس نے رپورٹ کیا کہ جیفری ایپسٹین کی رہائش گاہوں اور ہوائی جہازوں میں خفیہ کیمرے نصب ہیں جو کہ مبینہ طور پر اس مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ امیر اور طاقتور لوگوں کے جنسی جرائم کی ریکارڈنگز کی جائیں اور پھر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہیں بلیک میل کیا جا سکے۔ اگرچہ برسوں تک جیفری ایپسٹین کے حوالے سے مبینہ غیر قانونی جنسی سرگرمیوں اور ٹریفکنگ کی خبریں گردش کرتی رہیں، لیکن پہلی باضابطہ شکایت سن 2005 میں درج ہوئی جب ایک 14 سالہ لڑکی کے والدین نے دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹی نے جیفری کے گھر میں جنسی استحصال کا سامنا کیا ہے۔ پھر ایک کے بعد ایک الزام لگانے والے سامنے آتے گئے، جن میں سے زیادہ تر ہائی اسکول کی طالبات تھیں۔ I was so young. Keelan woke me up in the morning and said, "You're going to meet a prince today." I didn't know at that point that I was going to be trafficked to that prince.
जो पैसे कमाने के आसान तरीकों और मॉडलिंग की लालच में इन चीजों में मुलविस की गई। जेफरी एप्स्टीन ने एक पुरकशिश और पुरतायुश जिंदगी गुजारी और वो अक्सर जमानत की मामूली रकम अदा करके या इस्तगासा के साथ सौदे करके मुश्किल से निकल जाता था। और जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि सन 2008 में लंबी कैद की सजा का सामना करने के बजाय उसने नॉन प्रोसिक्यूशन मुआहदा किया कि जब उसने एक नाबालिग के साथ जिनसी ताल्लुकात के एतराफ किया, लेकिन उसे कम सजा यानी सिर्फ 13 माह कैद बामुशक्कत की सजा हुई। यह फैसला उस वक्त इतना चौंका देने वाला था कि उस वक्त के एक अमेरिकन प्रोसिक्यूटर एलेक्जेंडर एकोस्टा ने कहा कि उन्हें एप्स्टीन को हल्की सजा देने का कहा गया था क्योंकि एप्स्टीन का ताल्लुक एक खुफिया एजेंसी से था। अब सोचने की बात यह है कि जेफरी एप्स्टीन का ताल्लुक किस खुफिया एजेंसी से था। उसकी दौलत और ताकत में गैर मामूली तेजी से इजाफा इस हवाले से इशारा देता है। उसने कॉलेज तक मुकम्मल नहीं किया था और वो न्यूयॉर्क मैनहट्टन के एक अमीर इलाके में डाल्टन नामी स्कूल में फिजिक्स और रियाजी पढ़ाता था। यहां उसने किसी न किसी तरह सरमायाकारी बैंक बियर स्टर्न्स के सरबराह एलन ग्रेनबर्ग की तवज्जो हासिल की, जो नामालूम वजूहात की बिना पर जेफरी एप्स्टीन से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। और नाजरीन, आप समझ सकते हैं कि ये नामालूम वजूहात मालूम वजूहात ही हैं और उन्होंने जेफरी एप्स्टीन को अपनी कंपनी में मुलाजमत भी दे दी, हालांकि जेफरी को फाइनेंस का कोई साबका तजुर्बा नहीं था। इसके बाद एलन ने जेफरी को एक यहूदी अरबपति लेस्ली वेक्सनर से मुतारिफ कराया, जिसने चार्ल्स ब्रूनफमैन के साथ मिलकर सन 1991 में एक ग्रुप की बुनियाद रखी जिसका नाम मेगा रखा गया। इस ग्रुप को ताकतवर यहूदी ताजरों के नेटवर्क के तौर पर बयान किया गया जो इसराइल के लिए खैरात और मदद इकट्ठी करने पर मरकूज था। साबिक अमरीकी जासूस जॉन शिंडलर के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने मेगा को अमेरिकन जासूसी और असर रसूख हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। शिंडलर का ख्याल है कि जेफरी एप्स्टीन इन इसराइली इंटेलिजेंस सरगर्मियों से मुंसलिक था। साबिक इसराइली जासूस एविबैन मीनाश ने भी यह दावा किया है कि एप्स्टीन और गैसलिन मैक्सवेल ने इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम किया और वो मुमताज अफराद को ब्लैकमेल करने के लिए हनी ट्रैप्स बनाने में महारत रखते थे। हनी ट्रैप का वर्ड अंग्रेजी में यूज होता है। ये दरअसल एक उसी तरह का एक फंदा लगाया जाता है कि जहां पे जिस शख्स को जिस चीज की हाजत हो उसका एक सूरत बना दी जाए और फिर उसको जब वहां पे बुलाया जाए तो उसको इल्म ना हो कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए, उसके खुफिया लम्हात की, उसके निजी लम्हात की, और फिर अपने मकासद के लिए उन वीडियोस को इस्तेमाल किया जाए। और ये पूरी दुनिया में एक इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर एक रिवाज सा चल पड़ा है बहुत अरसे से और सब लोग ये कर रहे हैं और इसराइली इसमें सबसे आगे हैं। अच्छा, इस जासूस ने एक ये दावा भी किया कि एक मीडिया बैरन यानी मीडिया आउटलेट्स के मालिक, बहुत ज्यादा मीडिया आउटलेट्स जिसके हो ना उसको बैरन फिर कहते हैं। बैरन यानी बड़ा आदमी, नवाब को कहते हैं बैरन। तो रॉबर्ट मैक्सवेल उसका नाम है, जो गैसलिन मैक्सवेल का वालिद था और एक फ्रॉडिया आदमी मशहूर था और उसको एक बदनाम फाइनेंसर के तौर पर जाना जाता था। वो भी इसराइली इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। अच्छा, उस शख्स ने इस काम के लिए दरअसल जेफरी एप्स्टीन को भर्ती किया था। रॉबर्ट मैक्सवेल के ब्रोनेफमैन के साथ भी करीबी ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उनके रवाबित मेगा ग्रुप के इसराइली जासूसी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे। अच्छा, ख्याल किया जाता है कि रॉबर्ट मैक्सवेल ने प्रॉमिस नामी एक सॉफ्टवेयर है जो कि मोसाद इस्तेमाल करती है इंटेलिजेंस के लिए, उसको अमेरिका के मुख्तलिफ हुकूमती इदारों में मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात तक फैलाने में उसने मदद की और इस प्रोग्राम के तहत रिकॉर्डिंग्स करने के लिए जासूसी आलात जा बजा अमेरिका में नस्ब किए गए। सॉफ्टवेयर का ये वर्जन इजरायली इंटेलिजेंस को दरअसल खुफिया तौर पर मुख्तलिफ मकामात की जासूसी करने में मदद करता है। अच्छा, जिन इदारों को निशाना बनाया गया उनमें से एक लास अलामूस नेशनल लेबोरेटरी भी थी, जो कि अमेरिका के आला तरीन जौहरी तहकीकाती मराकज में से एक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेगा ग्रुप के दीगर अरकान ने यह सब कुछ मुमकिन बनाने में एप्स्टीन की मुकम्मल सहूलतकारी की। जेफरी एप्स्टीन की तरह रॉबर्ट मैक्सवेल की भी सन 1991 में पुरअसरार हालात में मौत हुई थी। कुछ लोगों का ख्याल है
کہ उसने अपने हाथों अपनी जान ली, और कुछ लोग कहते हैं कि उसको कत्ल किया गया, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एप्स्टीन ने भी अपने हाथों अपनी जान नहीं ली बल्कि उसको भी कत्ल किया गया है ताकि एप्स्टीन फाइल्स को छुपाया जा सके। एप्स्टीन पर इल्जाम लगाने वाली विक्टोरिया जॉफ्रे हाल ही में अपने घर में मुर्दा पाई गई। अच्छा, ये सब लोग पुरस्रार हालात में मुर्दा पाए जाते हैं, जबकि ये सब के सब कत्ल हैं, और इनकी मौत को भी, इस खातून की मौत को भी यह करार दिया गया कि उन्होंने अपने हाथों अपनी जान ले ली। दिलचस्प बात यह है कि विक्टोरिया ने सन 2019 में एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अवामी तौर पर बता रही हूं कि मैं किसी भी सूरत में अपने हाथों अपनी जान नहीं लूंगी। बहुत सारे बुरे लोग मुझे खामोश देखना चाहते हैं। जेफरे की मौत के 3 साल बाद जेन लुक ब्रुनेल, जो इस केस से मुंसलिक एक फ्रांसीसी मॉडल हैं, उनकी अपनी जेल के कमरे में फंदा लगी लाश मिली और फिर यही बताया गया कि उन्होंने भी अपने हाथों अपनी जान ले ली है। नाज़रीन, हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स के अंदर इस तरह से किसी शख्स का मर जाना, अपने हाथों अपनी जान लेके, ये मुमकिन नहीं होता, और ये बाकायदा कत्ल की ही वारदातें होती हैं, और सिर्फ ये छुपाने के लिए ये सारा ड्रामा घड़ा जाता है। और जहां तक एप्स्टीन का ताल्लुक है तो ये बात भी इंतहाई काबिल गौर है कि उसकी मौत के दिन उसके जेल वाले कमरे के बाहर मौजूद दोनों गार्ड्स सो रहे थे। हालांकि हर आधे घंटे के बाद एप्स्टीन को चेक करना उनकी जिम्मेदारी थी। अच्छा, जेल में एप्स्टीन के कमरे का साथी भी 1 दिन पहले इस कमरे से जा चुका था। अच्छा, वाज़ेह रहे कि इसके जेल के दरवाजे के बाहर मौजूद जो क्लोज सर्किट कैमरास होते हैं ना, उसकी फुटेज में भी 1 मिनट की फुटेज गायब पाई गई। वो किसने की, वो कहां गई, जिससे पता चलता कि क्या हुआ है। उसी 1 मिनट में हुआ जो कुछ हुआ एप्स्टीन के साथ। तो एप्स्टीन को मारा इसलिए गया ताकि ये मोसाद की सारी कार्रवाइयां छुपाई जा सकें। नाज़रीन, जेफरी एप्स्टीन के दोस्तों और उनके क्लाइंट्स की फहरिस्त बहुत तवील बताई जाती है। इस फहरिस्त को ब्लैक बुक का नाम भी दिया गया है, ब्लैक फाइल्स भी कहा गया है, और एप्स्टीन लिस्ट भी कहा गया है। लेकिन इस वक्त अमेरिकन इंतजामिया इस लिस्ट को खुफिया रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एप्स्टीन के दोस्तों में अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप, साबिक अमेरिकन सदर जो बाइडन, साबिक अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, बरतानवी शहजादा एंड्रयू, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, जादूगर डेविड कॉपरफील्ड, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, सुपर मॉडल नाओमी कैम्पबेल, अदाकार केविन स्पेसी, लेबर लीडर पीटर मेंडलसन और कई दर्जनों दीगर मौसर तरीन आलमी शख्सियात शामिल हैं। ये सब लोग एप्स्टीन की रिहाइशों पर भी जाते थे और उसके जजीरे पर भी जाते थे। बिल क्लिंटन की एक ऐसी तस्वीर एप्स्टीन की रिहाइशगाह पर आवेज़ा देखी गई है जिससे उनके मोनिका लेविंस्की के साथ ताल्लुकात की नौइयत के बारे में भी बखूबी अंदाजा हो जाता है। ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एप्स्टीन फाइल्स को मंजर आम पर लाने का ऐलान किया था और जो बाइडन को अक्सर डराया था कि मैं एप्स्टीन फाइल सामने ले आऊंगा। लेकिन अब जब भी उनसे जेफरी एप्स्टीन के बारे में सवाल किया जाए तो ट्रंप या तो शदीद हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं या ये कहना शुरू कर देते हैं कि क्या आपके पास इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. एक अहम डेवलपमेंट जो हाल ही में हुई है वो ये है कि अमेरिकन हुकाम ने अदालत में एक बयान जमा कराया है जिसमें बताया गया है कि जेफरी एप्स्टीन केस से मुतल्लिक कोई खुफिया फाइल मौजूद ही नहीं है और अदालत को तजवीज़ दी गई है कि इस केस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इस केस में नामजद मुलजिम अब इस दुनिया से ही रुखसत हो चुका है। लेकिन दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के पास जेफरी एप्स्टीन केस के बारे में कई राज मौजूद हैं। वो अक्सर अपने दोस्त अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसी केस का हवाला देकर तंग करते हुए पाए जाते हैं। जो ही ट्रंप मस्क से बिगड़ते हैं वो जेफरी एप्स्टीन केस की फाइल्स का जिक्र करना शुरू कर देते हैं और यूं डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क से ताल्लुकात बहाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। नाजरीन, जैसे अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और दुनिया के बहुत से ताकतवर ममालिक की आला तरीन क़यादतें इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मुहिम की गैर मशरूत हिमायत किए जा रही हैं। दरअसल इस सब के पीछे
موساد کی وہ ریکارڈنگز ہیں جن میں عالمی لیڈرز کے گھناؤنے جرائم کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور یقیناً ایک دن آئے گا جب یہ سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا اور اسرائیلیوں کا مکروہ چہرہ اور ان کے مکروہ منصوبوں کا پول بھی کھل جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ موساد تو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اور بظاہر اسرائیل توریت اور تالمود جیسی مذہبی کتابوں کو اپنا آئین تصور کرتا ہے، یعنی اسرائیل ایک ابراہیمی مذہب پر یقین رکھنے والے افراد پر مشتمل ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو کیا اسکول میں پڑھنے والی بچیوں کو بہلا پھسلا کر ان کو جسم فروشی کی جانب راغب کرنا اور ان بچیوں کو نام نہاد عالمی رہنماؤں کی ہوس مٹانے کے لیے پیش کرنا اور پھر ان جرائم میں ملوث شخصیات کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز کر لینا ان کے مذہب میں، ان کے اخلاق میں، ان کی معاشرت سے میل کھاتا ہے؟ کیا اسرائیل کے ان جرائم پر بھی کبھی کوئی سوالات ہوں گے؟ کیا موساد کے اس گھٹیا کردار کو امریکن خفیہ ایجنسی CIA یا برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 یا فرانسیسی خفیہ ادارے کبھی بے نقاب کرنے کی جرت کریں گے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان خفیہ ایجنسیز کے حکام بذات خود بھی موساد کے ہاتھوں بلیک میل ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔